Hello, students. Welcome to Smile with English. And today we are going to read a story, The Canary. So, it is a very interesting story. So, as you can see in the picture, this is a picture of a canary bird. Okay. Hope everybody have pet at home. Mostly, many people have pet at home. Some keeps dogs, cats, even birds. You know. So, here also in the story, we see that a boy, Somu, he will get a gift from his father, a bird, that is a canary. And what happens is, we will see how he slowly forgets to take care of the pet. So, likewise, we can say that if you're keeping a pet at home, you have to keep also take care of that pet, okay? Because you are keeping it as a pet means you have to take the full responsibility to take care of your pet. So here in the story we'll see what happens when somebody keeps a pet at home. Okay. Kendry. Somu's father had given him a wonderful gift on his birthday, a little yellow Kendry. So who had given this bird to Somu? His father on his birthday. Okay, इसकी जन्मदिन पे सोमू के जन्मदिन पे उसके पापा ने उसको एक येलो कलर की कैनरी दी थी. So Somu named her Molly. Molly sang softly and sweetly. At first, Somu looked after the bird. Each day, he cleaned her cage, gave her seeds and fresh water. At tea time, he gave her a lump of sugar. So, जैसे कि इसका नाम क्या रखा गया था, मॉली. ओके. और मॉली बहुत अच्छा गाती भी थी. सो जब ये पहली पहली बार आया था सोमू के पास, तो इसने ना बहुत अच्छे से ध्यान रखा था. ये रोज़ के रोज़ इसका जो केज था जहाँ पे इसको रखा गया था, है ना, केज, सो उसको अच्छे से क्लीन भी करता था, उसको खाने के लिए सीड्स देता था और इवन फ्रेश वाटर भी देता था. और फिर जब टी टाइम होता था, मतलब इवनिंग के टाइम में, उसको फिर लंप ऑफ शुगर भी देता था, मीठा चीज़ देता था. ओके. Molly was very happy in her cage. Molly's friends were very jealous of her. सोमू's friends would come to see Molly every day. So Molly जो है उसकी भी वो बहुत खुश था उस केज में, ठीक है. बट मॉली के जो दोस्त है वो बहुत जेलस फील करता था क्योंकि उसका इतना ख्याल रखता था ना सोमू, इसलिए उसको उन लोगों को बहुत ही जेलस फील होता था, है ना. सो सोमू's friends would come to see Molly every day. सो सोमू के जो दोस्त थे वो रोज़ आते थे मॉली को देखने के लिए. She would sing sweet songs for them. After some weeks, Somu lost interest in Molly. Now it was no longer fun to look after her. One day he did not clean the cage, another day he did not feed her, and then, worst of all, he forgot to give her water. So, ये जब ये इनके जो दोस्त आते थे सोमू के, ये तब ये मॉली क्या करती थी, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने उनके लिए गाती थी, ठीक है. पर कुछ वीक्स के लिए तो ठीक था. सोमू बहुत इंटरेस्ट लेके काम करता था मॉली के, ये सारे काम जो चीज़ें करता था वो अच्छे से सफाई कर रहा था, खाना भी दे रहा था, पानी भी दे रहा था. बट धीरे धीरे उसका जो इंटरेस्ट है वो चला गया और अब उसको ये सब कुछ करना अच्छा नहीं लगता था. तो एक दिन वो क्या हुआ था, एक दिन इसने क्लीन करना ही भूल गया केज को. फिर और एक दिन क्या हुआ, उसको खाना देना भूल गया. तो और एक दिन उसने उसको पानी देना भी उसको याद नहीं रहा. So Molly was very unhappy. Somu loved her no longer and she could not sing because she was so thirsty. सो अभी मॉली ये सब कुछ देख के मॉली बहुत ही नाखुश है और सोमू उसको पता चल गया कि सोमू अभी उसको और प्यार नहीं कर रहा है. तो उसका जो है गाना भी इसने गाना बंद कर दी बिकॉज वो बहुत ज़्यादा उसको प्यास लगी थी और वो गाना भी नहीं गा पा रहा था. शी वेंट टू हर water dish hoping there might be just a drop of water but there wasn't any. तो वो अब पानी पीने के लिए उसका जो डिश था उसमें देखा कि थोड़ा सा पानी होगा तो मैं पी लेती हूँ, बट वहाँ पे एक बूंद पानी भी नहीं था. Called Molly loudly, but Somu was busy playing with his new toy gun and took no notice of the little bird. So वो ट्वीट ट्वीट करके बुला रहा है सोमू को कि उसको बहुत प्यास लगी थी, तो इसलिए वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बुला रहा है. बट वो सोमू क्या कर रहा था, वो बहुत बिजी है, अपना जो एक टॉय गन है उसको लेके वो खेल रहा है. तो उसको कोई उसने नोटिस ही नहीं किया कि कोई उसको बुला भी रहा है. सो शी क्राइड एंड हर फ्रेंड्स felt very sorry for her. Tears ran down her face. Oh, I am in this cage and I can't get out to find food and water for myself, she said. So, उतना रो रहा था और उसके जो दोस्त थे सोमू के, उनको भी बहुत बुरा लग गया और आंसू निकल आए इस चिड़िया के ना, आंखों से आंसू भी निकलने लगे. क्या बोल रही है वो कि आई एम इन दिस केज एंड
वो अभी जाके अपने लिए खाना या पानी भी नहीं पी सकता अपने लिए, क्योंकि वो एक केज के अंदर है ना. So, Chirpy the sparrow was sad too and said, "We wish we could help you." The little canary drooped her little yellow head and prayed to God. So, Chirpy जो था एक स्पैरो था, तो उसने भी बोला कि काश मैं तुम्हारा कोई मदद कर सकती थी. So, the little canary bird, उसने अपना जो हेड है, उसने अपने येलो हेड को निकाला और गॉड को प्रे किया कि मुझे प्लीज़ यहाँ से कुछ हेल्प मुझे भेजो. सो अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग सोमूज मदर केम टू वेक हिम. सो नेक्स्ट डे कौन उसको बुलाने के लिए उठा? सोमू के मदर उसको जगाने लगा. शी वॉज सरप्राइज व्हेन शी डिड नॉट हियर द स्वीट वॉइस ऑफ द कैनरी. सो बहुत सरप्राइज होगी कि अभी तक कोई आवाज़ नहीं आ रही है. कैनरी सुबह उठ के तो ये जो कैनरी है वो कुछ ना कुछ गाती थी, तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी उस दिन. सो बहुत सरप्राइज हुई उसकी मम्मी. She peered into the cage. Molly was lying there, half dead. So वो जैसे ही देखने लगा वो केज के अंदर, तो देख रहे कि मॉली जो है वहाँ पे हाफ डेड, मतलब मरा मरा सा वो पड़ा है वहाँ पे. सोमू's mother took her out of the cage carefully and stroked her yellow feathers. सोमू की मम्मी ने उससे क्या किया, उसको केज में से निकाला और स्ट्रोक मतलब धीरे धीरे उसके फेदर्स को धीरे धीरे हाथ से ऐसे सहलाने लगा. शी फेड द लिटिल बर्ड विथ फ्रेश सीड्स एंड वाटर. उसने फिर उसको खाना भी दिया, थोड़े से सीड्स और पानी भी दे दी. शी वॉज़ वेरी एंग्री विथ हर सन. वो बहुत गुस्से थे सोमू के ऊपर. और उसने क्या बोली? सोमू, व्हाट अ ड्रेडफुल थिंग. इफ़ यू कांट लुक आफ्टर दिस पुअर क्रीचर, you have no right to keep it. I am so ashamed of you, said the mother. Somu burst into tears and felt sorry. Therefore, he looked after Molly, the little canary, very well. So उसने बोला कि अगर मैं बहुत ज़्यादा अनाखुश हूँ तुमसे, क्योंकि अगर तुम्हें संभालना नहीं आता है तो तुम इस चिड़िया को अपने पास मत रखो. और मैं खुद ही बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ आज तुम्हारी वजह से. तो ये सुन के सोमू बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उसने सॉरी भी फील किया. और उसके बाद से क्या हुआ, उसने फिर से मॉली का ध्यान रखना शुरू किया. ठीक है. सो दिस इज़ द स्टोरी. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट इफ़ यू कीप एनी पेट एट होम, यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट पेट. आपको उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो खुद अपने लिए खाना वगैरह तो नहीं ले सकते, क्योंकि आपने उसको रखा है अपने घर पे, तो आपको खुद ही उसको पानी देना है, खाना देना है, तो उसके हर एक चीज़ का ख्याल आपको खुद ही रखना है. ठीक है. सो दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी.